third class here on nascent. That is what direct to indirect. We have already uploaded 2 videos, and this is what the third one. And here we will discuss about the rule number 3. Rule number 3, we have about tense, how to change the tense. Rule number 3, how to change the tense, sorry, sentences. Sentences. Rule number 3, how to use, sentences. Rule number 3.1. First, assertive sentence. Assertive sentence you have already learned in the sentence chapter, that is, it is constructed with subject, verb, object. So, what will be the joining word and how will we change it? Only reporting verb भी change करना पड़ता है. Verb. What are the reporting verb we use in assertive sentence? Reporting verb here: told, said, and like that. Asserted, declared, asserted, declared, etc. These are the reporting verb we use in the assertive sentence. And what is the joining word? Now listen, this is the most important vital factor about changing the narration and assertive sentence. A joining word in a sense, to join the reporting verb and the reported speech, we need joining word. And most of the time, these person, but generally for all joining word sentences used that as a joining word, but it is not correct. Only assertive sentence, then we use that as joining word. Only assertive sentence, example like that. Only assertive sentence where we use that as joining word, and these are the told, said, asserted, declared. These are the word reporting verb used in assertive sentence. For example, he told, Sunrise, he told, suppose I am the student. I am a student. Suppose this is the question. I am a student. Here this is asserted or declared subject verb object sentence used here. So here we will join the reporting verb and reported speech by that, and reported speech and reported verb by that, and told की जगह में told लगा सकते हैं. That is what he told that he was. Tense as usual change होंगे. वो tense का रूल्स में आए already instantly. He was a student. Sir. हाँ sir. One meeting is there in hall. What? One meeting is there in hall. They are calling to us. All of us. Yeah. You want to go or you stay here? We want to stay here. You understand? So he told, I am student. This is what assertive sentence we need joining word as that, and as reporting verb told, said. This is what reporting verb we changes according to the sentences. Assertive sentence में जैसे reporting verb told, said, asserted, declared ये सब use की, और joining word that use करेंगे. Same way दूसरे से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, ये दैट को ऑन सेंटेंस में जॉइनिंग वर्ड सबसे यूज करते हैं, नहीं होते हैं. एंड दैट इज व्हाट रूल्स का हिसाब आपको यूज करना है. नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर यूज करते हैं. रूल नंबर 3.1 था 5 सेंटेंस का 5 डिफरेंट रूल्स यूज करेंगे. 5 सेंटेंस में 5 डिफरेंट रूल यूज. 3.2 for interval. Okay, हाँ सर.
sentence, what are the generally reporting verb we use for मीटिंग है क्या था बोला है interrogative sentence? Reporting verb. हुआ होगा क्या Reporting verb. Generally, interrogative sentence, that is the question sentence. इसमें asked, wanted to know, inquired. These are the what reporting verb we use in assertive interrogative sentences. And the joining word. In case of interrogative sentence, इसको अगर join करेंगे at that time joining word two types of होता है. For a WH word, WH questions you have. So for WH questions, the word and yes no questions, yes no questions, if or whether. So this is what the joining word most of the time student mistake here. इसी पार्ट में ज़्यादा भी मिस्टेक करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आस्क्ड, वांटेड टू नो, एनक्वायर्ड लगा दिया, बट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने का टाइम इफ़ और वेदर येस नो क्वेश्चन के लिए और WH क्वेश्चन के लिए WH वर्ड को ही ज्वाइनिंग वर्ड बनाते हैं और आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस बना देते हैं. ये है यहाँ का रूल, बट यही पोर्शन में ज़्यादा मिस्टेक होता है. ये रूल्स को आप समझने से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे. जस्ट रूल्स को लिख कर रखेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब asked, wanted to know, inquired, joining word WH questions, the word itself and yes no, if or whether. yes no questions के लिए if and whether, yes or no question के लिए if and whether, yes or whether. इसका एग्जाम्पल two types of different example here. Example में और clear होगी. He said, where are you going? So this is a question asked by him to me. So you is not clear, so इसको जब change करेंगे, he asked for me. ये reporting verb interrogative sentence में asked और whether होते हैं. He asked. ज्वाइनिंग वर्ड ये WH वर्ड, तो यहाँ पर डेट गलती से भी नहीं लगाना है, वही मिस्टेक ज़्यादा करते हैं. इसी को ज्वाइनिंग वर्ड हिसाब से यूज करेंगे. व्हायर, ही आस्क्ड व्हायर. इसको रिमेनिंग जो पार्ट इसको असर्टिव बना देना है. व्हायर यू की जगह में मी और ही समवन एल्स, आई सपोज आई वाज, क्योंकि टेंस एज वेल चेंज टेंस क्योंकि यू नो पास्ट टेंस में है, तो इसको भी पास्ट टेंस करना है. आई वाज वही फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर सेंस को आपको समझना है. जब वो डायरेक्ट पूछा था तब बोला था आप कहाँ जा रहे हैं, बट इसको जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा था, तो मैं जा रहा था इसको पूछा था. यहाँ पर रिपोर्टिंग हुआ, एक सिंगल सेंटेंस बना, इसको ज्वाइनिंग वर्ड यूज किया वायर, क्योंकि WH वर्ड है. यहाँ पर गलती से भी दैट नहीं लगा. दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. दैट हर जगह में नहीं लगाते, तो दैट नहीं लगेंगे, वायर लगेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड एंड आई. रिमेनिंग जो पार्ट है सेंटेंस उसको असर्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस पैटर्न में बना देंगे. इसमें और डाउट्स होंगे, प्रैक्टिस करने का है तब आर्ट्स में है. नेक्स्ट इसका और एक तो येस नो क्वेश्चन आता है. जैसे राम से डू यू हैव एक कार, आपका कार है क्या. इसको येस नो क्वेश्चन इसी सेंस में बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर येस और नो में दिया जाता है. दैट्स व्हाई येस और नो क्वेश्चन. डू यू हैव अ कार, इसको हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड दैट तो लगाएंगे नहीं, इंटररोगेटिव सेंटेंस, और ये WH वर्ड है नहीं तो WH नहीं. इफ और वेदर से जो करेंगे, तो राम आस्क्ड, यू वांटेड टू नो,
इफ आई यू आई को इंडिकेट अगर किए हैं तो आई लगा देंगे ना, इफ आई डू हैव को पास्ट टेंस करना है, जैसे ये कौन सा टेंस में यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट लगेंगे। इफ आई हैड ए कार, फुल स्टॉप, हैव को हेड बनाएंगे, तो राम आस्क्ड इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे कार था, तो दिस इज व्हाट कि आप यहाँ पर जॉइनिंग वर्ड जो है इफ और बाय द लगाएंगे अगर क्वेश्चन यस नो है, और रिमेनिंग जो सेंटेंस है उसको असर्टिव बनाने, मतलब सब्जेक्ट भाग ऑब्जेक्ट, और उसका टेंस भी चेंज करेंगे, एंड प्रोनाउन एज वेल चेंज, जो रूल नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 4 में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। तो ये 3.2 का रूल था इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट 3.3 जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस जनरली 2 टाइप्स होता है, बट जॉइनिंग वर्ड वहाँ पर कुछ नहीं लगाते हैं, इंफिनिटिव बना देते हैं। Imperative sentence. ये 2 टाइप्स होता है, स्ट्रक्चर समटाइम्स इंपैरेटिव होता है एंड समटाइम्स सेंस इंपैरेटिव होता है। इंपैरेटिव दैट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, दीज आर कॉल्ड इंपैरेटिव। तो इसमें जॉइनिंग वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएंगे और जॉइनिंग वर्ड इसको हम लोग लेते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब requested, present tense को request, order, अगर सेम समझ में नहीं है तो टोल्ड भी यूज होता है, एडवाइस, proposed, all these are what used in imperative sentence, request, order, told, advise, proposed. Next joining word इंपैरेटिव स्ट्रक्चर के लिए, इंपैरेटिव स्ट्रक्चर के लिए 2 प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, इंपैरेटिव स्ट्रक्चर, और असर्टिव स्ट्रक्चर के लिए दैट यूज करते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन किया था, इंपैरेटिव सेंटेंस समटाइम्स असर्टिव स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, तब उसमें दैट यूज होता है, जैसे यू शुड डू दैट, तो ये शुड दे आपको करना चाहिए, ये एक एडवाइस है, बट ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, यू शुड दे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग असर्टिव स्ट्रक्चर में इंपैरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो असर्टिव स्ट्रक्चर में इंपैरेटिव सेंटेंस में दैट यूज होते हैं, और असर्टिव इंपैरेटिव सेंटेंस का इंपैरेटिव स्ट्रक्चर में टू यूज होता है, तो टू इसका जॉइनिंग वर्ड को आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे ना, दोनों में सेपरेटली डिस्कस किया। इंपैरेटिव स्ट्रक्चर उसमें टू यूज होता है, स्ट्रक्चर जो इंपैरेटिव है बट असर्टिव या स्टेटमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें दैट यूज होता है, दोनों यहाँ पर यूज होते हैं। तो हम एग्जाम्पल में क्लियर समझें, क्लियर समझेंगे, जैसे he said shut the door, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, मे बी ऑर्डर है, रिक्वेस्ट, तो ऑर्डर, सपोज ये ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर टू जॉइनिंग वर्ड है, क्योंकि इंपैरेटिव स्ट्रक्चर में, इंपैरेटिव स्ट्रक्चर में सब मेन भाग पहले आता है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, तो उसको हम लोग इंपैरेटिव स्ट्रक्चर, ही ऑर्डर टू शट, यहाँ पर जॉइनिंग वर्ड टू लगाया, गलती से भी डेट नहीं लगा, गलती से भी डेट नहीं लगा था। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, राम शेड you should obey the instructor. Ram said you should obey the instructor. ये assertive sentence में दिया हुआ है, but imperative sense आ रहा है,
एडवाइस ही तो राम एडवाइज्ड। इसको दोनों तरीके पे टू भी लगा सकते हैं, एडवाइस टू हो गए द इंस्ट्रक्शन, एक हो सकता है, या दूसरा इस तरीके में भी कर सकते हैं, राम एडवाइज्ड दैट we should obey the instruction। ये टू फॉर्मेट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, आइदर टू या दैट। अगर उसमें स्ट्रक्चर इंपरेटिव है तो टू लगाएंगे, स्ट्रक्चर असर्टिव है तो दैट जॉइनिंग वर्ड लगाएंगे। बट एडवाइज जो रिपोर्टिंग भार में, क्योंकि इंपरेटिव सेंस है और वो एडवाइज कर रहा है, यहाँ पर आपको टू थिंग्स करना है। एक तो सेंस को भी समझना पड़ेगा कि वो एडवाइज्ड है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। लास्ट यहीं पर आके फुल 100% प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। आप पूरा रूल्स को समझ गया, अप्लाई भी करेंगे, बट तब तक नहीं प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे जब तक ना आप सेंटेंस का सेंस को समझ सकते हैं। दैट इज कम्युनिकेटिव लेवल में आके आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। रूल स्ट्रक्चर कितना ही भी फॉलो करो तब तक ना कंप्लीट परफेक्शन नहीं आएगा जब तक ना आप सेंस समझ में आते हैं। ये नॉट ओनली फॉर ग्रामर, ये आपका बट अनसीन प्लेसेस में भी होता है, लिटरेचर में भी होता है, राइटिंग में भी होता है। एवरी प्लेस आप रूल सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, सेंस सीखेंगे, बट कंप्लीट तब आपका परफेक्शन आएंगे जब आप कम्युनिकेटिव लेवल में उसको सीखेंगे। और कुछ रूल्स बचा है, रूल नंबर 3 का और 3 का, और एक तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। एंड रूल नंबर 4 दैट इज फॉर द लास्ट वीडियो में। ये तीनों आप परफेक्टली याद रखेंगे। जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो असर्टिव में दैट आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट गलती से भी नहीं लगाना। आइदर इफ और वेदर या WH सेंटेंस है तो WH वर्ड को लगाएंगे। एंड इंपरेटिव सेंटेंस में आप टू लगाएंगे इंपरेटिव स्ट्रक्चर के लिए, एंड इंपरेटिव स्ट्रक्चर के लिए टू लगाएंगे। एंड अगर वो स्ट्रक्चर असर्टिव है और इंपरेटिव सेंटेंस है तब हम उसमें दैट लगाएंगे। ये पोर्शन में अगर कन्फ्यूजन होंगे आप लोग पर्सनली मेरे को पूछेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट